हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज हम इसके एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट 0 माइनस 3 5। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, तो सॉल्यूशन फर्स्ट, फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 5x माइनस 3। कंटिन्यूटी का सिंपल कंटिन्यूस देखने का सिंपल एक तरीका है कि आप देख लीजिए कि जो फंक्शन का 0 पे वैल्यू है और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं कि जब हम 0 इंसर्ट करेंगे तो क्या होता है। y ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो y 0 पे वैल्यू आ रही है माइनस 3, तो लिमिट चेक करते हैं। आर राइट हैंड लिमिट RHL चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h, लिमिट s टेंडिंग टू 0 5 0 प्लस h माइनस 3, और यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे। h की वैल्यू भी ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 होती है, तो 0 मान के हम पुट कर देंगे। i की वैल्यू माइनस 3। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h is equal to लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 0 माइनस h बराबर माइनस 3। यहाँ से भी 3 आ रही है वैल्यू, तो इससे प्रूफ होता है कि RHL बराबर LHL बराबर f ऑफ 0। तो ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 3 और 5 पे। तो हम y ऑफ माइनस 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 15 माइनस 18 आ रहा है। RHL चेक करते हैं। RHL में लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 माइनस प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस 3 प्लस h माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 18। LHL लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस नॉट प्लस सॉरी 0 माइनस 5 minus 3 minus h minus 3 is equal to minus 18. Hence we prove this function is continuous at x is equal to 3. You can also do the same for at x is equal to 5. Okay, now we move to the second question. Second question says that fx is equal to 2x minus 1 is continuous at x equal to 3. So we are going to do the second question. Solution second.
So y of x is equal to 2x square minus 1 is continuous at x is equal to 3. So we are going to check first at the value at 3, x is equal to 3. The function is 2, 9 minus 1. This is 17. Then we are going to check LHS or LHL, LHS, LHL are both are equal. Limit x tending to 3 minus f of x is equal to limit h tending to 0 minus, or you can put 0 only. Think. So the function became 2, 3 minus h minus 1 whole square. This came out 17. RHS limit x tending to 3 plus f of x limit h tending to 0 2 3 plus h whole square minus 1. This also came out 7. Here RHL or RHS, LHL or and f of 3 is equal, is finite. Hence the function is continuous on x is equal to 3. You are going to write the same steps in your exam copies. So we are going to move on the third question. The third question, what is the third question? Third question contains 4 parts. We are going to check the continuity of these 4 functions. First, we are first option. First question. Solution. Third, 3a. Y of x is equal to x minus 5. We are going to check the continuity of this function. We have to check it continuous at any general point. Suppose the general point is C. Any you can take any point. I suppose C or C, any constant C. Let C be any real number. ठीक है. F is continuous at x is equal to C if and only if limit x tends to C, f of x is equal to f of C. If we put this limit and if we put the C indirect in the our function, both values are must be equal for the function continuous, or we can say that right hand limit or left hand limit and the function value must be equal. So we have to find the left hand limit. So LHS limit x tending to C minus f of C is equal to limit. Most of the teacher does not tell this this h function which I am telling you. They are only tell this
not this. But this is a much easier way to solve any limit questions. You study this in class 11th also, so I tell this. So where we are, limit function value. What is the function value? C minus 5. The value comes out C. If we put C 0, C minus 5, ठीक, RHS. Limit x tends to C plus. You can see that the function is continuous now. You can do any question after this short and script video. After this you can do any question, any of continuity and differentiability question. I also introduce some very important trick later on of our other video. First of all, I am going to solve the entire exercise in part wise. This first part contain the first 3 questions, or we can extend some more question. We can pick if the questions are good. I'm not going to do all the exercise question because you can search on YouTube. Many teachers are doing same, but I am here to explain the concept behind the questions, not to just solve it or anything. So the second question. In the second question tells y of x 1 upon 5 minus x. If we simply put that x is equal to 5, the functions goes to infinity, and the functions goes to infinity. 1 by 0 is an infinity form. That is not possible. ठीक? So we have to check the continuity of the function at any point except 5. 5 के सिवा हम हर एक पॉइंट पे इसका चेक करेंगे. क्यों? क्योंकि ये फंक्शन 5 पे डिसकंटिन्यूअस है. सबसे पहले हम कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं. सपोज लेट टेक एनी जनरल पॉइंट P. ठीक. अब हम इस P पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे. ठीक. देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप इस तरह बस लास्ट जैसे सेम क्वेश्चन था, P के वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पे 5 माइनस P सब में आ जाएगा 5 माइनस P, और क्या राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो P माइनस 5, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो 5 माइनस P. Sorry, for my convenience, this question is not, but we can do this question also. Okay, so first do this, and the question in the NCERT is given that y of x is equal to 1 upon x minus 5. So first we do this, then you can do this question also by yourself. Okay, now f of p फंक्शन पे हम पुट करते हैं तो ये आएगा 5 माइनस P.
लेफ्ट हैंड पुट करते हैं। आपको पता ही है मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अब आपको आदत हो जानी चाहिए। देख सकते हैं तीनों की वैल्यू सेम आ गई है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ऐसे ही होता है। मैं आपको और भी शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ फंक्शन कंटिन्यूअस देखने का। आप इसको डिफरेंशिएट मार दीजिए एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग, आपको फट से आंसर मिल सकता है। लेकिन आप वो नहीं करें क्योंकि वो एक शॉर्ट ट्रिक है और शॉर्ट ट्रिक तो लगता नहीं है। तो इस फंक्शन का रेंज आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको डोमेन बता देता हूँ। इस फंक्शन का डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर एक्सपेक्ट 5। आप मेरे को इसका रेंज बताइएगा जरूर कमेंट करके। हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार सीबीएसई में पूछा जा चुका है, ये या इससे सिमिलर मिलता जुलता, ठीक, तो पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि बच्चों का आदत डायरेक्ट लिमिट पुट करो आ जाएगा आंसर, नहीं हो इसमें वैसा नहीं चलेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5। आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, x की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0/0, जो कि एक अनडिफाइन है। यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे इस फंक्शन की कहाँ पे, सारे रियल वैल्यूज पे एक्सेप्ट -5। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -5। आपको सारे क्वेश्चंस का रेंज कमेंट में बताना ही है। आप इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा आईटीएफ का, इस तरह क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। ग्राफ पूछ सकता है इसका आपका, या आपको ये तो पूछ ही रहा है डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी, और इससे आप डोमेन रेंज भी निकाल सकते हैं। 1 1 ऑन टू फंक्शन पूछ सकता है इससे। तो हम कोई भी एक जनरल पॉइंट लेके सेम फंक्शन जैसा किए थे जनरल पॉइंट लेते हैं। लेट टेक एनी जनरल पॉइंट, लेट p बी एनी जनरल पॉइंट ऑन डोमेन, ठीक। तो क्या होगा, मैं पहले पुट करूंगा f ऑफ p, x -5 और x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 बराबर x -5। फंक्शन इज p -5। अब बहुत बच्चे पूछेंगे आपने x, रुको एक मिनट, कि मैंने x स्क्वायर -25 को x -5 में और x प्लस 5 में कैसे, फैक्टर है इसके, आप करके देख लीजिए। देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x प्लस -25, दिस कम आउट टू बी एक्स स्क्वायर -25। सो एक बहुत ही यूज की जाने वाली ये भी आता है इसमें, आप आगे देखेंगे x -3 और x प्लस 3 की वैल्यू आएगी। आपको जरूर ये मिलेगा ऐसा क्वेश्चन आपके स्कूल में या आपने कहीं भी किया होगा। तो ये वाला फैक्टर जो है, ये तो आपने 110% ये वाला देखा ही होगा। तो आगे हम पुट करते हैं
पहले मैं इसको रब कर लूं। ये रफ वर्क है। तो हम इसमें पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इस क्वेश्चन का यूएसपी यही था कि कैसे, मैं लिख देता हूँ यूएसपी, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को हम ब्रेक कर सकते हैं एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5 में। ये क्वेश्चन का यही यूएसपी था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ऐसे आपको याद रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट हम देखते हैं क्या होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पी माइनस, और वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स प्लस 5, इसमें भी आपको ब्रेक करके ही चलना है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी p माइनस 5। देख सकते हैं आपको फंक्शन ये कंटिन्यूअस है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 5 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम आ जा रहे हैं एक और, जो इसका अगला पार्ट है वो भी सुपर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी पेपर में आ चुका है, क्योंकि ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी लेके आता है ये फंक्शन। क्वेश्चन डी, थर्ड का क्वेश्चन डी, फंक्शन दिया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। आप इसका ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको ग्राफ इंसर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे x माइनस 5 का ग्राफ आप देख सकते हैं। फंक्शन का कंटिन्यूटी यहाँ पे है, फंक्शन ब्रेक होगा, 0 होगा यहाँ पे 5 पे, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक। तो यानी हम आगे चलते हैं, फंक्शन की कंटिन्यूटी हम देखेंगे। सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। मॉड फंक्शन को सबसे पहले आप ब्रेक करना सीखे, मैं आपको सिखाता हूँ ब्रेक कैसे किया जाता है, ठीक। सबसे पहले x माइनस 5, हर x की वो वैल्यू जो 5 से बड़ी होगी, 5 से बड़ी होगी, उस पे ये जो मॉड है वो पॉजिटिवली ओपन होगा। मीन्स कि मान लीजिए मैं 6 लेता हूँ, 6 माइनस 1 माइनस 5 1, पॉजिटिव नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मॉड पॉजिटिव से खुलेगा। पर वहीं मैं अगर लेता हूँ x की वैल्यू लेस देन माइनस 5, लेस देन 5 माइनस 5 सॉरी, लेस देन 5, तो हमें मॉड की वैल्यू नेगेटिव से ओपन करनी पड़ेगी, ताकि मॉड एक पॉजिटिव वो है, क्या कहते हैं, क्वांटिटी है। मॉड का जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है, पर जो रेंज होता है वो होता है r प्लस। तो ये आएगा 5 माइनस एक्स, ये आएगा आपका फंक्शन का कंटिन्यूटी। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 5 पे, प्लस पे और माइनस पे क्या आएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले लिमिट चेक करते हैं, f ऑफ 5। 5 हम अब कहाँ चेक करेंगे, जहां पे इक्वालिटी लगी हो वहां पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 5 की, जो कि आएगा 0, ठीक। हम RHL चेक करेंगे, आप चेक करके देख लीजिएगा, वो भी 0 आएगा। LHL चेक करेंगे, वो भी 0 आएगा, क्योंकि बस वैल्यू डायरेक्ट पुट करके देखिए, आपको तीनों ही जगह 0 मिलेगा। मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। ये केस 1 है, केस 1, ठीक। केस 2 ये है जब x लेस देन 5 हो, मीन्स इस वाले पे हमने केस 1 पे चेक किया, कब x इज इक्वल टू
5 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की क्या आई, प्रॉपर लिमिट डाल के आपको चेक करना है। ठीक, अब हम चेक करेंगे इस पे एट एक्स इज इक्वल टू लेस देन 5 पे। सो लेस देन 5 पे एक ये सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन है, आपको यहीं पे दिख गया होगा कि आप इसमें कोई भी वैल्यू डालें, मीन्स ये आप लेस देन या ग्रेटर देन 5 डालें, ये पॉलिनोमियल फंक्शन ये पक्का ही कंटिन्यूअस होगा। अब सेम लिमिट का फंडा लगा के आपको पूरा लिमिट डालना है, इसमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, वो बराबर आएगी, आपका हो जाएगा। ठीक, दूसरा सेम आपको +5 ग्रेटर देन 5 पे चेक करना है, जो कि मैंने समराइज करके तीनों का लिख दिया है एक ही बार में ये वैल्यू। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 5 पे। ये है, पर ये फंक्शन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। वो कैसे? पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक, और एक मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये याद आप रखिएगा, ये आपको आगे बहुत काम आएगा कि मॉड फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। मैं और बताऊंगा कौन किस किस तरह के फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं। मैं आपको इसका एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ जो मुझे याद आ रहा है। एक्सरसाइज का 5.1 का 5वां क्वेश्चन जो कि है f of x is this x if and only if x is less than 1, 5 if and only if x is greater than 1। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की 0, 1 और 2 पे। the x is equal to 0, 1 and 2 पे we have to check the continuity of the function। तो पहले हम x is equal to 0 पे चेक करेंगे। x is equal to 0 पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्यों? अब देख लीजिए, आप फंक्शन में 0 पुट करो, कहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। ठीक, वैल्यू 0 आ गई, और इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर वो भी एफ ऑफ, देखिए एफ ऑफ 0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फंक्शन ये कंटिन्यूअस है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो वैल्यू डालेंगे वो आएगा। ठीक, दूसरा हम 1 पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, 1 पे चेक करने के लिए हमें LHL RHL बराबर चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 1, 1 पे जो फंक्शन है हमारा आएगा 1। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट this function is discontinuous on x is equal to 1। सेम हम उस पे चेक कर लेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो आप इसको चेक कर सकते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे
एक कांस्टेंट फंक्शन हो जा रहा है। कैसे कांस्टेंट फंक्शन हो जा रहा है? x इज इक्वल टू 2 पे हम सिर्फ ये वैल्यू ही लेंगे, ये वाली वैल्यू, ठीक। तो 1 के बाद आप 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, एंटायर लाइफ में आप इंफिनिटी डाल दो, फिर भी ये वैल्यू 5 ही आएगी क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, तो वैल्यू इनफिनाइट ही आएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह का क्वेश्चंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्लास 12th के या 11th में किसी में भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। या फर्दर किस टॉपिक पे मैं और आगे वीडियोस बनाऊं, शॉर्ट ट्रिक्स बनाऊं, या ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे जो बच्चे माइंड से स्लिप कर जाते हैं, जो लास्ट टाइम पे या पढ़ने ही चाहिए उनको कैसे भी करके, ताकि वो मार्क्स इंप्रूव कर सके अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में। सो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए आराम से बिना स्ट्रेस लिए, सब कुछ अच्छा होगा। गुड बाय।